Good morning, everyone. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Do you people have any doubts in the yesterday's lecture? No, sir. Also, Okay. So yesterday we were discussing the basic structure of a C program, and we did this program of Hello World in the class. And then I also discussed the details of this hash, include, stdio.h, int main. Every keyword was discussed in detail. So in today's lecture, we will continue with this, and we will move our level up to make a program for doing the summation. Okay, so we want to do the sum of two numbers. So yes, anyone, any doubt? You can ask me the doubts. It is just the beginning. People are joining right now, so you can ask me your doubts if you have any doubt in the previous class. Did you people try the code? So I installed Turbo C++ and Dev C++. Turbo C++ didn't run, and Dev C is having a problem with starting up. So just Dev C++ is fine. So if you are working with Dev C++, it's fine. So no need to worry about the other softwares. Right now, you only need Dev C++ or the online compiler is fine. Just start your work with that. Yeah. Anyone else? Okay. Should we continue? Should we start this code? Huh? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Someone is asking. Gitesh. Yes, sir. What is the meaning of this curly bracket? Curly bracket means the block. So boundary hai ye, theek hai? Curly bracket means my boundary of my main function. So we said yesterday, whichever word we have written along with this round bracket, it means this is a function. And obviously now for this function हमें कुछ boundary define करनी पड़ेगी कि ये function कितना काम करेगा. तो हमने बस एक इसका scope बता दिया. मतलब इसको हम स्कोप भी कह सकते हैं, ब्लॉक भी कह सकते हैं, बाउंड्री भी कह सकते हैं. तो ये वाला जैसे कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे डाला है, अगर मैं इसको हटा के यहाँ से यहाँ पे डाल दूंगा, देन इट इज ऑल्सो फाइन. इट्स जस्ट दैट वी वांट टू टेल कि इसका स्कोप कितना है या फिर इसकी बाउंड्री कितनी है. बाउंड्री तो वैसे हम नहीं टेक्निकली बोलते, वी से इट इज स्कोप और वी से इट इज ए ब्लॉक. So these are the block of state block having some statements which will do some work in this function main. Okay, sir. हाँ जी. Okay, so let's understand this code. Now there is one new thing in this code. This statement is new. We all know how this printf works. We know that whatever is written inside the double quotes सिर्फ उतना ही प्रिंट होगा. ठीक है, मतलब जब भी हमारा प्रिंटिंग के लिए जाएगा सिर्फ इतना आउटपुट जाएगा, दैट इट विल बी प्रिंटिंग समथिंग लाइक दिस. अब %d का मतलब मैं अभी बताऊंगा. गिव मी 2 मिनट्स. सो % वाली जगह मैं अभी खाली छोड़ रहा हूँ, कॉमा एज इट इज आ जाएगा. b इक्वल टू एम्प्टी स्पेस अगेन, क्योंकि यहाँ पे कुछ आएगा. c इक्वल टू अगेन समथिंग that is expected. So now when we say that we are writing %d inside a printf, it simply means that we are expecting an integer at this place. %d is a sign, it is a symbol to expect an integer at this place. So क्या होगा यहाँ पे, हमारे printf के अंदर वो expect कर रहा है कि मुझे यहाँ पे एक integer मिले, and that integer will be provided from this space. यहाँ से वो यहाँ पे replace कर जाएगा, and b वाला सेकंड वाली जगह पे चले जाएगा, c वाला थर्ड वाली जगह पे चले जाएगा. और अब ये काम कैसे कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू, printf के अंदर जितनी भी चीजें हैं, लेट्स से फर्स्ट कंपोनेंट इज माय डबल कोट्स. डबल कोट्स के अंदर जो भी आएगा वो एक सिंगल कंपोनेंट है. कॉमा के बाद सेकंड थिंग इज a, थर्ड थिंग इज b, फिर कॉमा आया, फोर्थ कंपोनेंट इज c. अब इसमें जो ये मेरी चार चीजें हैं, पहले वाला डबल कोट्स, उसके बाद abc, all of them are called the arguments. All of them are arguments inside my printf function. ठीक है जी. तो मतलब जो ये चार चीजें आई हैं, अब मतलब शॉर्टकट यही है सबसे आसान इसको याद रखने का कि जितने कॉमा है वो चेक कर लो. यहाँ पे मुझे 3 कॉमा दिख रहे हैं, इसका मतलब 3+1.
4 कंपोनेंट इसके अंदर हैं, और वो 4 कंपोनेंट क्या हैं? फर्स्ट कंपोनेंट इज माय डबल कोट्स, उसके बाद ए है, बी है, सी है, और ये वाला जो ए बी सी है ये अंदर जाके जगह लेगा जहां जहां पे उसको %d मिलेगा, बिकॉज मेरे पास जो ए बी सी है यहाँ कोड में, ऑल ऑफ देम आर इंटीजर्स ओनली। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे इंटीजर लिखा हुआ है मैंने, इसलिए मैं कह पा रहा हूँ दैट माय ए बी एंड सी आर द इंटीजर्स विच विल टेक द प्लेस एट दीज प्लेसेस इन सीक्वेंस। जैसे जैसे वो सीक्वेंस में आते जाएंगे ए बी सी, वैसे वैसे वो %d को फिल करता जाएगा। ठीक है जी, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है कि ये फिल कैसे हो रहा है? अकॉर्डिंग टू यू व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? यहाँ पे हमने a को 10 दे दिया, b को 11 दे दिया, c को a प्लस बी कर दिया, सिंगल लाइन में हमने 3 चीजें कर दी। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, इफ आई वांटेड टू राइट द कोड, तो मैं मेन के अंदर लिखता int a b c, उसके बाद लिखता a इक्वल टू 10 सेमीकोलन, सेमीकोलन तो हर बार आएगा, b इक्वल टू 11, c इक्वल टू a प्लस बी। तो मैं इसको ऐसे करके 4 लाइन में भी लिख सकता था, और इन 4 लाइनों को हमने एक ही लाइन में लिख दिया। मतलब ये दोनों चीजें ठीक हैं यहाँ पे। अब एक चीज ध्यान देने वाली है, जब तक सेमीकोलन नहीं आया तब तक एंड ऑफ द स्टेटमेंट नहीं हुआ। इफ यू वांट टू कंटिन्यू वर्क, यहाँ पे कॉमा डालते जाओ एंड यू कैन कंटिन्यू योर स्टेटमेंट्स, एंड ऑल ऑफ देम हैव दिस इंट, दैट्स व्हाई वी कैन राइट दिस इन a सिंगल लाइन. Someone is writing in the chat box 21 is the output. Yes, obviously 21 will be the output because we are doing this c equal to a plus b. Now c equal to a plus b will give me value according to this के a वाला यहाँ पे आ जाएगा, b वाले को 11 मिल जाएगा। Obviously c is equal to 10 plus 11 equal to 21. तो मुझे ये तो पता चल गया कि मुझे c को 21 देना है, बट देन व्हाट विल बी द आउटपुट? मैं आउटपुट पूछ रहा हूँ, सिर्फ 21 नहीं आउटपुट आएगा। आउटपुट आता है, जस्ट रिमेंबर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रिंटफ में जो भी डबल कोट्स में आएगा वो एज इट इज आउटपुट में आएगा। तो इसका मतलब a इक्वल टू 10, कॉमा b इक्वल टू 11, कॉमा c इक्वल टू 21, दिस विल बी द एग्जैक्ट आउटपुट दैट वी विल रिसीव। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. No, sir. ठीक है, मतलब आई जस्ट गॉट वन मैसेज इन द चैट बॉक्स दैट एक बंदे ने लिखा है 10, 11, 21। अरे ये आउटपुट नहीं है, ये आउटपुट होता वो तब होता अगर मैं यहाँ पे प्रिंटफ के अंदर सिर्फ ये लिखता printf %d, 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 उसके बाद मैं यहाँ लिखता ABC। फिर वो क्या करता, A को यहाँ भेज देता, B को यहाँ सेकंड नंबर पे, C को थर्ड नंबर पे। फिर ये printf के अंदर वाली चीज कैसे प्रिंट होती? देन इट वुड हैव बीन प्रिंटेड लाइक, पहले 10 होता, फिर कॉमा कॉपी पेस्ट हो जाता, कॉमा आ जाता यहाँ पे, देन 11, देन 21। तो 10, 11, 21 विल बी ओनली आउटपुट व्हेन आई हैव दिस कमांड printf %d, %d, %d in this double quotes. Double quotes का ध्यान रखना that whatever is written inside the double quotes that will be printed as it is. ठीक है, अब वो तुम देखो कि अगर मुझे यहाँ पे, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं, बट बिफोर कॉम्प्लेक्सिंग इट आई विल do this program online. I will show you how it works. Just give me 1 second. I'm switching my screen to the online compiler. Online C compiler. Okay, so I'm switching it to my compiler screen now. I hope you can see this. So I will remove the initial comments. Multiple line comments थे ये, कल बात हुई थी मल्टीपल लाइन और सिंगल लाइन कमेंट की। नाउ आई वांट टू मेक दैट प्रोग्राम जो हमने पीछे देखा है, मैं उसको एज इट इज लिख रहा हूँ, इंट a इक्वल टू 10, कॉमा b इक्वल टू 11, यहाँ पे स्पेसेस डाल सकते हो। समवन आस्क्ड मी यस्टरडे इन सम लेक्चर कि मैं इंट और a के बीच में स्पेस लिखूं, ये कंपल्शन है या नहीं है? तो अगर आप int और a के बीच में स्पेस लिखोगे, इट मीन्स दैट योर a इज ए वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर। अब यहाँ पे a, मैंने a को बोला है वेरिएबल, एक वेरिएबल नाम की चीज आ गई है यहाँ पे। मैं वेरिएबल के ऊपर भी अभी आपको बताऊंगा दैट व्हाट इज वेरिएबल, आई विल कम टू दिस, बट बिफोर दैट आई एम कंप्लीटिंग दिस कोड, उसके बाद हम देखते हैं वेरिएबल क्या होता है। सो अगर आप यहाँ पे स्पेस नहीं डालोगे तो वो इंट नहीं, वो इंटा बन जाएगा, एंड इंटा इज नथिंग। ठीक है, इंट ही होता है, इंट का मतलब इंटीजर, इंटा इज नथिंग, इंटा फिर वो आपका कोई वेरिएबल बन जाएगा, फिर वो आप अपना नाम लिख लो उसकी बजाय, उससे बेटर होगा।
So C equal to A plus B. So this was the first thing that was written in that code, and then printf statement had this thing, A equal to %d, ऐसा ही था पीछे, एक सेकेंड, हाँ A equal to %d था, ठीक है, आई एम गोइंग राइट, A equal to %d, comma B equal to %d again, comma C equal to %d। ठीक है जी। अब देखो यहां से एक और चीज पता चल रही है, आई टोल्ड यू दैट वट एवर इज रिटन इनसाइड द डबल कोट्स, वो तो आपका आउटपुट एज इट इज आएगा ही आएगा, वो %d अपडेट मारेगा। लेकिन अब प्रिंटफ को कैसे पता चलेगा कि मेरे कितने आइटम्स आएंगे आउटसाइड दिस डबल कोट्स? इसके बाद जो कॉमा डाल के हम यहाँ पे लिखेंगे A, B, C, उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे यहाँ पे 3 ही लिखने हैं या 2 लिखने हैं या 1 लिखना है? एनी आइडिया, एनीवन, एनी कमेंट ऑन दिस? How will my printf know, how will my compiler check कि printf के अंदर मुझे 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे मेरे पास 4 आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है, हम इसको आर्ग्यूमेंट बोलेंगे, 4 आर्ग्यूमेंट्स हैं। हाउ विल माई कंपाइलर वेरीफाई कि यहाँ पे 4 आइटम्स ही आनी थी, 4 आर्ग्यूमेंट ही आने थे, 3 या 2 या 1 नहीं आना था, बट 4 ही चाहिए थे? कैसे पता चलेगा, बताओ जी जल्दी। Commas, sir. So by कॉमर्स देखो, अब so by counting the values inside the inverted commas like A, B, number of variables, I mean to say. ओके, सो बोथ ऑफ यू आर पार्शियली करेक्ट। यहाँ पे ना %d से पता चलेगा कि कितने % है अंदर। %d मीन्स आई वांट 1 पार्ट। अब जो सेकंड रिप्लाई था, आई गॉट दैट वेरिएबल्स, सिर्फ वेरिएबल से नहीं पता चलेगा। अगर मैं ABCD यहाँ पे 4 भी लिख दूं अंदर ग्रीन कलर वाला, बट इट मैटर्स कि आपका ये %d कितने हैं। तो यहाँ पे %d इनसाइड द डबल कोट्स 3 है, ठीक है। सो सेकंड आंसर वाज मोर क्लोज टू द राइट आंसर। सो %d गिनेंगे अंदर कितने हैं, तो 3% है, इसका मतलब मुझे 3 यहाँ पे वेरिएबल डालने हैं अलग से, A, B, C। तो मतलब टोटल विल बी 4 आर्ग्यूमेंट्स। 3 तो ये ABC हो गए, 4th इज द डबल कोट्स, तो टोटल 4 आर्ग्यूमेंट्स आएंगे। मिनिमम एक तो आएगा ही आएगा। सो व्हेन वी प्रिंटेड हेलो वर्ल्ड, तो उसमें हम कुछ A, B कुछ नहीं करते थे हम, बट डबल कोट में लिखते थे हेलो वर्ल्ड, और मे बी वी कैन राइट हैप्पी बर्थडे, देन यू आर जस्ट प्रिंटिंग दैट, राइट। सो डबल कोट्स तो आना ही आना है, वो तो मिनिमम है कि एक चीज डालो। उसके अलावा कॉमा डाल के कितने डालने हैं वो हमारे यहाँ पे %d या %f जो भी होगा उसके ऊपर मैटर करेगा। समवन रेज द हैंड जस्ट हाफ अ मिनट बैक। Any Yes, sir. doubt? Yes. Yes, sir. Sir, is it necessary to write these 4 arguments here? For printing, yes. देखो अगर आप ये Sir, काम, ये हाँ जी, backslash वाला, backslash 4 arguments. अच्छा ये वाला, अरे नहीं नहीं, दिस इज द कमेंट। ये तो मैंने अपने खुद के लिए लिखा है ना कि दिस इज कमेंट, ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा कोड। तो इफ आई रन दिस नाउ इट स्टिल रन्स, ठीक है। तो मतलब आउटपुट तो मेरा फिर भी आ रहा है। इट्स जस्ट दैट मैंने खुद के लिए एक नोट्स बनाए थे, आपके लिए नोट्स बनाए थे कि इन दिस स्टेटमेंट वी हैव 4 आर्ग्यूमेंट्स। जो भी हम कमेंट लिखते हैं, सिंगल लाइन कमेंट इज रिटन बाय दिस 2 फॉरवर्ड स्लैशेस, तो ये वाला कंपाइलर इग्नोर कर देता है जो भी यहाँ पे लिखा होगा। मैं चाहे यहाँ पे कोई सॉन्ग के लिरिक्स लिख दूं तो भी कंपाइलर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट्स जस्ट माय नोट्स। हाँ जी, एनी अदर डाउट? No, sir. Someone has written, whenever I run a C program in main.exe file, okay, is it a problem? No. So main.exe file is not a problem. हम उसके ऊपर आएंगे। What happens is when you run a program, आप क्या करोगे, you will save this program. Let's say आपने प्रोग्राम का नाम रखा sum.c, ठीक है। आप dev C++ यूज कर रहे हो, you save your program as sum.c. Now when you compile, it will make one file which has a name of, one second, generally it is a.out। जो आपकी फाइल बनेगी, its name is a.out। बैकएंड पे आपका ये एक a.out नाम का जनरली ये बनता होता है, ठीक है। कंपाइलर का काम है उसको a.out में कन्वर्ट करना जब आपका कोड बैकएंड पे रन हो रहा है या कंपाइल हो रहा है। कंपाइल होना और रन होने में फर्क है। कंपाइल होने का मतलब है that you are converting your code from .c into this .out which is a object file,
ठीक है, वी विल कम टू दिस, ये 2-4 लेक्चर के बाद डिटेल में हम करेंगे, बट it also converts your file into sum.exe. So exe means executable file. तो जो हमारा कंपाइलर है वो उसका काम है कि वो sum.c को बैकएंड पे क्या कर रहा है, वो डॉट आउट फाइल बना रहा है, साथ में डॉट exe फाइल बना रहा है, और डॉट exe को तो हम एग्जीक्यूटेबल फाइल बोलते ही हैं, वी कैन रन दिस फाइल ऑन आवर पीसीज डायरेक्टली। तो अगर आप sum.exe के ऊपर डबल क्लिक करोगे तो आपकी वो डायरेक्टली इस स्क्रीन पे आपको ले जाएगा, आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो दैट इज द बैकएंड प्रोसेस, उसके ऊपर अभी हम नहीं जाएंगे। Now I change the plus sign to divide sign. So someone is writing in the chat box. So the output is coming 0 y. Plus sign को divide कर दिया. Okay. So someone is saying to me in the chat box that आप लोगों ने क्या किया, plus को divide बना दिया. तो now a upon b. बताओ जी output क्या आएगा? Anyone? सर 0 आ रहा है। 0 आ रहा है, but क्यों आ रहा है? Because sir, क्योंकि it वहाँ is a percentage decimal. ही है। Answer is a और decimal. integer सर ये And integer integer yeah, and float we में have लेंगे given तो आएगा। integer. Yes, yes. So I got one correct answer. इंटीजर है ये, ठीक है, जितने भी हमारे ए बी सी हमने 3 वेरिएबल लिए हैं, ऑल ऑफ देम आर इंटीजर, और इंटीजर ना पॉइंट्स को इग्नोर कर देता है। तो 10/11 विल बी मे बी 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट कितना आएगा, 0.8 या 0 पॉइंट कितना आएगा बताओ? 11 into 9, 10 into 9, so it will be 0.9. yes, 0.9 आएगा. So 10/11 will be 0.90. But now because my c is an integer, तो जब वो c के अंदर वो इसको भेजेगा तो वो क्या करेगा, c वाला मेरा वेरिएबल 0.9 को काट देगा, सिर्फ 0 रख लेगा अपने पास, एंड आउटपुट विल बी 0. ठीक है जी. And I will take this opportunity to bring other things also. यहाँ पे अगर मैं परसेंट डाल दूं, anyone any idea आउटपुट क्या आएगा? सर वो रिमाइंडर के लिए होता है ना? Yes, so 10/11 will be 10 only. So if you run this now, your c value will be 10. देखो यहाँ पे आउटपुट is 10 because percent sign means remainder in C programming. ठीक है जी. मॉड्यूलस हो जाएगा सर ये इसका? हाँ, मॉड्यूलस हो रहा है ये. दिस इज ए मॉड्यूलस साइन ओनली. सो नाउ इफ यू वांट टू गेट योर आंसर जैसे आप चाहते हो कि मुझे वो 0.9 वाला आए, तो हम क्या करेंगे, हम फ्लोट ले लेते हैं सबको, ताकि मेरा जो 10 है वो भी पॉइंट्स में हो जाएगा कन्वर्ट बैक एंड पे, 11 वाला भी पॉइंट्स में हो जाएगा, और सी वाला भी अगर मैं a/b करूंगा तो 0.9 आंसर आएगा. इनफैक्ट आंसर विल बी 0.90000, पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स आएंगे. बट आई हैव टू मेक वन स्मॉल चेंज in this code to get this run perfectly. Can anyone tell me that what will be that change? Integer main, I guess, upside. No. int main का परसेंट डी परसेंटेज डी हटाना पड़ेगा, जो फ्लोट नंबर का लिखना पड़ेगा। क्या होता है फ्लोट का? परसेंट परसेंट Yes, good. So I will come to int main also. Someone said int main. So if I convert this percent d into percent f, it means that my now printf is expecting a float number inside it. 3% f है तो मतलब 3 मुझे यहाँ पे भेजने पड़ेंगे वैल्यूज. सो इफ आई रन दिस नाउ, द आउटपुट इज 0.909091. ठीक है जी. और देखो ये 10 और 11 भी 10.0000 ऐसे हो गया. फॉर द सिंपल रीजन परसेंट एफ का बाय डिफॉल्ट पॉइंट के बाद 68 लेता है. एंड समवन सेड इंट मेन के साथ चेंज करना पड़ेगा कि इंट को फ्लोट कर दो. वो नहीं है, इंट मेन विल बी कंसिस्टेंटली इंट मेन ओनली फॉर एवर. हम int main का सिर्फ ये काम है कि int main will be returning 0 to the operating system so that to give a symbol sign कि भाई मेरा काम हो गया, take your resources back. I discussed this yesterday. So int main का या तो int main ही रखो या फिर आप इसको void main कर दो कि हम उसको कुछ भी नहीं दे रहे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को. So we can simply just remove this return 0 and still get the work done. तो आप void main करोगे तो भी आपका काम चल जाएगा. हाँ जी, anyone any other doubt? Sir, will we get an output if we change the sequence of ABC after the inverted commas? Yes, we will get the output, but then it will make no sense because हम क्या कर रहे हैं? Let's say if I make B A C as my sequence, ठीक है. अब क्या है कि B वाली चीज चली जाएगी A के पास, क्योंकि इसने सीक्वेंस में ही जाना है. It has to go in sequence. First %f will get this argument, second %f will get the second this argument A, and third one will get the last one. तो अब आप इसको रन करोगे
it will still make sense because आप a plus b को या b plus a को करोगे, it does not affect the answer because you are actually printing the things, but then still है तो गलत ही है। a upon b अगर आप करोगे 11/10 should be 1.1, तो ये गलत है, ठीक है। तो you have to take care कि आप सीक्वेंस क्या कर रहे हो, तो यहाँ पे a, b ही आएगा। Okay, sir. यस सर अगर हाँ जी। हम जो डबल कोट्स के बाद अगर हम इनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो वो तो हमें बाद में आगे अगर जैसे स्वैपिंग वाले कोई भी हम कोट्स करें तो उसमें तो हेल्पफुल रहेगा ना। एक्चुअली नो, बिकॉज फॉर अ सिंपल रीजन व्हेन वी से स्वैपिंग का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे प्रिंटिंग में स्वैप करके दिखा दो, वो तो फिर कोई भी कर देगा। a को 10 ऊपर लिखा, b को 11 लिखा, यहाँ पे पहले b प्रिंट करा दो, a प्रिंट करा दिया, आउटपुट में आपका 11 और 10 आ रहा है, इसको स्वैपिंग नहीं बोलते। स्वैपिंग का मतलब है कि a और b के अंदर की वैल्यूज को स्वैप करना है। इसका मतलब मुझे वो जो पीछे रैम में मैंने कल समझाया था, दैट आई एम गेटिंग माई नंबर्स सेव्ड इन द रैम ऑन द बैक एंड, that thing has to be swapped। अब इनको आपस में स्वैप करना है, चैलेंज ये होता है स्वैपिंग में। स्वैपिंग डज नॉट मीन कि आप प्रिंट करवा रहे हो सिर्फ उल्टा, वो तो फिर आप करवा ही सकते हो, a कॉमा b करके b कॉमा a प्रिंट करवा दो। हाँ जी, किसी ने कुछ बोला? सर इफ यू वांट टू सॉल्व द नंबर्स विद एक्सपोनेंट्स देन व्हाट टू डू? we will come to that। exponents वाला भी हम आएंगे। In fact you have one program in your lab, assignment 1, there is one challenge that you have to make one program to find the nth root of a number। तो ये वाला प्रोग्राम आपको लैब में करवाया जाएगा। इट इज़ पार्ट ऑफ योर असाइनमेंट। सो इट मीन्स दैट अगर आप 100,2 एक पावर फंक्शन होता है, एक पावर फंक्शन होता है, यहाँ पे ऊपर आपको मैथ डॉट एच करना पड़ेगा उस केस में। मैथ डॉट एच मीन्स दैट हम मैथ्स का कोई फंक्शन मंगवाना चाहते हैं एंड पावर फंक्शन इज पार्ट ऑफ मैथ डॉट एच। तो हम क्या करेंगे, उसमें पावर फंक्शन में ये भेज देंगे, लेट्स से यस 1/2 करना पड़ेगा यहाँ पे बिकॉज आई वांट 1/n। तो 100,1/2 भेजेंगे, तो इट मीन्स 100 रेज़ टू पावर 1/2 विच इज एक्चुअली स्क्वायर रूट ऑफ 100 विच इज इक्वल टू 10। ठीक है जी। तो मतलब अगर मैं बोलूँ आई वांट सेकंड रूट ऑफ 100, इसका मतलब यही है that I want to put the values 100 and 2 in this formula of m and n। Here my n is 2, m is 100 and we will get the work done। तो ये आपको लैब में करवाया जाएगा, ठीक है जी। ओके, सो आई एम कमिंग टू void। यहाँ पे someone has said कि void का मतलब बता दो। I said earlier that int main has a function कि वो end में return zero लिखना पड़ता हमें। इट इज ए सिंबल के हम जीरो भेज रहे हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को जहां पे मेरा ये सॉफ्टवेयर रन हो रहा है। एंड जीरो का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम नोज दैट इफ आई एम गेटिंग ए जीरो फ्रॉम द प्रोग्राम इट मींस दैट योर वर्क इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। बट इन केस मैं रिटर्न नहीं करवाना चाहता कुछ भी, तो मैं यहाँ पे void लिख देता हूँ। void का मतलब है कुछ भी आपको रिटर्न नहीं करना, void इज null, void means nothing, right? So you have to return nothing। तो आप रिटर्न वाली स्टेटमेंट को मत लिखो और ऊपर void लिख दो, काम तब भी हो जाएगा। Any other doubt? Should we move ahead? Yes, sir. Okay. Coming to the slides. If you have any doubt in this program, you can ask. Otherwise, I'm moving to the next slide now. So this is the beginning of binary number system. But before letting you know that what binary number system means, I want to ask from you that what do you know about binary number system? Anyone? Binary number system के बारे में जो पता है मेरे को बताओ। It's a two-way function type। Two-way function? मतलब सर इसमें दो वो यूज होती हैं। Bits. It's देखो kind of boolean। ओके लिसन। सो बाइनरी नंबर सिस्टम पे हम आएंगे, उससे पहले आई वुड लाइक टू मेंशन हियर दैट कंप्यूटर नोज ओनली 0 and 1। जो भी हमने प्रोग्राम बनाया, पीछे हमने सम का प्रोग्राम बनाया, राइट, हमने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाया, सो वट एवर वी आर डूइंग दैट प्रोग्राम is interpretable and understandable for a human being like me or you, right? लेकिन कंप्यूटर को वो सब समझ में नहीं आता। कंप्यूटर को समझ में सिर्फ 0 1 की इंफॉर्मेशन समझ आती है।
तो when we process, when my compiler processes my program, it converts each and everything of that program into some code, जिसके साथ let's say अगर मैंने suppose main लिखा तो main function का code है suppose 010, ऐसी printf का suppose कोड है 111, तो मतलब वो कंप्यूटर जो हमारा कंपाइलर है वो मेन को 010 करके भेज रहा है आगे, ठीक है, कि कंप्यूटर समझ इसको और काम कर, ऐसे printf को 111 करके आगे भेज रहा है. I am just taking the arbitrary numbers. So this is a binary number. So every number having only 0 and 1 inside it, सिर्फ इन दोनों को यूज करके आप कोई भी नंबर बनाओगे, then it is a binary number. Binary number का basic rule is that out of the 0 and 1 आपके पास कोई भी और digit नहीं होना चाहिए within that number, ठीक है. So any information can be encoded in binary strings. Binary string का मतलब है, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 111, तो इसके लिए ये string है, ठीक है. सपोज मैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा रहा था या फिर मैं कंप्यूटर प्रिंट करवाऊंगा अपने printf के अंदर, इट इज ए स्ट्रिंग फॉर अस, अल्फाबेट्स का स्ट्रिंग है ये. सिमिलरली अगर आप 0101 का कुछ कलेक्शन करके एक नंबर बना रहे हो 11110000, तो उसको अगर आप सेंड कर रहे हो टू द प्रोग्राम, मतलब टू द कंप्यूटर, सो दिस इज ए बाइनरी स्ट्रिंग. अब वो उसको डिकोड करे अपने आप के पहले 2 का मतलब क्या, अगले 3 का मतलब क्या है, वो टुकड़ों में अपने आप उसको बांट लेगा, एंड इट विल गेट द result whatever we want as a human being, whatever we want from a computer, it will decode it itself, ठीक है. हमारा काम तो सिर्फ एक सिंपल कोडिंग करना है कि हमने वो int main, printf, hello world वो सब लिख दिया, वो बैकएंड पे अपने आप उसको संभाले, वो उसकी चिंता है. एंड only 0 and 1 are there in a single bit. So when we say that 1 bit memory is there, तो 1 bit location पे या तो एक 1 आएगा या फिर वहां पे 0 आएगा. So these are the only 2 bits that can be there. It can be also imagined as a switch, कि या तो वो 0 करेगा या 1 करेगा या true करेगा या false करेगा, तो आप इसको कुछ भी कह सकते हो. But at a particular place, if we say that there is only 1 bit 1 bit memory, within that 1 bit memory either 1 will come or 0 will come, both cannot come together in a single bit location. And we also know that 8 bits make 1 byte. I think I discussed this yesterday also. Can anyone tell me that 10 raised power 2 raised power 10 terabyte is equal to how much? I mean it is equal to 1 watt. यहाँ पे क्या आएगा, जैसे हमें पता है 2 raised power 10 MB is equal to 1 GB, ठीक है, यहाँ पे GB था, तो 2 raised power 10 TB यहाँ पे क्या था? Can anyone tell? So zettabyte. No, yes, it is petabyte, PB, ठीक है. इसके बारे में एक बार थोड़ा सा आप अपने एंड पे भी सर्च कर लो. पेटाबाइट तक मैंने बताया है, बट उसके आगे और भी होते हैं, X भी होता है, Y भी होता है, Z भी होता है, तो ये सब भी देख लेना, ठीक है. और भी 1-2 होते होंगे. So clearing my drawings, someone is asking in the okay, so someone responded in chat box, PB, it's correct. Okay, so moving to the next slide. Now binary number system is officially started, okay. We still have 20 minutes to go, so I will cover this slide completely and maybe next one also. So okay, so first of all I want to mention, let's say that I want to write a number 676, ठीक है, 676 in base 10. This is a mathematical number which we are seeing from our childhood, and this can be decoded into 6 into 100 plus 7 into 10 plus 6 into 1. Yes or no? ये सब तो हमें आता ही है ना, तो ये 676 ही होगा. And we can also write this thing as 6 into 10 to the power 2 plus 7 into 10 to the power 1 plus 6 into 10 to the power 0. Yes or no? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 10 की पावर 0, 10 की पावर 1 एंड 10 की पावर 2? यस और नो? Yes, sir. बचपन में सीखा था 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100s प्लेस. वही चीज ना अब यहाँ बाइनरी नंबर सिस्टम में भी वैलिड है, ठीक है जी. बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है, वहां पे 10 to the power 0 था, यहाँ पे 2 to the power 0 है.
वैसे 2 to the power 1 है, 2 to the power 2 है, 2 to the power 3 है। अगर डेसिमल नंबर होता तो मैं कहता 10 to the power 0, 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3, 10 to the power 4। यही तो होता है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, ये सब चलता रहता है। सिमिलरली यहाँ पे भी ये कहानी चलेगी। इट्स जस्ट दैट नाउ इन बाइनरी नंबर सिस्टम बाय मतलब 2, तो 2 की पावर होगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, सिमिलरली 2 की पावर 4, 2 रेज़ पावर 5, 2 रेज़ पावर 6। तो ये चलती रहेगी कहानी, ठीक है। जितना बड़ा नंबर होगा हम उसके वेट्स के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ इन दिस केस वी हैव बाइनरी नंबर ऑफ 1101, ठीक है जी। अब 1101 पॉइंट से इधर वाले साइड है, तो हम सिर्फ अभी लेफ्ट हैंड साइड की डिस्कशन करते हैं। 1101 का मतलब है, नाउ आई हैव टू डिकोड इट, एंड उसका जो वेट है 1101 का, इसको मैं वेट्स बोलता हूँ। जैसे हमारा ये था 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, तो ये वेट्स थे हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम के। सिमिलरली माय वेट्स फॉर नाउ इट विल बी 1, 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे करके चलता जाएगा 2 टू द पावर में। दीज आर द वेट्स। सो पहले हम क्या करते थे, अगर मैंने 676 किया तो मैं करता था उसको 10 टू द पावर 0 के साथ मल्टीप्लाई इसको आपस में, और लिखता था आंसर, मतलब 6 into 1 मतलब 6। ऐसे 7 into 10 to the power 1 मतलब 7 into 10 equal to 70, ठीक है जी। उसके बाद 6 into 100 600, 600 plus 70 plus 6 676 ऐसे बनता था। तो अब वही वाला कंसेप्ट मैं यहाँ पे लगाऊंगा। कंसेप्ट क्या कहता है, दैट अगर मैंने 1101 करना है और इसके वेट्स कहते हैं कि 1, 2, 4, 8 इसके वेट्स हैं, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। 1 into 1 आउटपुट आया 1, 2 into 0 आउटपुट आया 0। अब इनको ऐड भी करते जाना साथ साथ। 4 into 1 आउटपुट आया 4, प्लस 8 into 1 आउटपुट आया 8, तो सम आया 13। इसका मतलब मेरा लेफ्ट हैंड साइड इज रिप्रेजेंटिंग 13, दैट्स व्हाई इन द आंसर लेफ्ट हैंड साइड इज सेइंग 13। इतना समझ आया सबको? यस सर। किसी को भी कोई भी डाउट है अभी पूछ सकते हो। सो आई एम राइटिंग वन रैंडम नंबर हियर। आप इसका मेरे को बताओ कि क्या आंसर है। इसको आप सॉल्व करो, मुझे बताओ कि अगर ये मेरा बेस 2 नंबर है तो मेरा बेस 10 में डेसिमल नंबर इक्विवेलेंट इसका क्या होगा। जैसे हमने किया, मेरा 1101 का 1101 was base 2, 13 was base 10, तो हमने 1101 को base 2 से base 10 में 13 लेके आए, ठीक है। ऐसे ही ये वाला इतना बड़ा नंबर है, अब इसको बताओ कि डेसिमल में क्या होगा इक्विवेलेंट उसका base 10 में, क्विकली। So someone is saying that, please tell again. 365 होगा। 365, 189। एक जना कह रहा है 189, एक कह रहा है 365। कोई और आंसर? 365। ओके, लेट्स वेरीफाई। ये दो आउटपुट आए मेरे पास, ठीक है। इसमें से अब मैं फटाफट वेट्स मल्टीप्लाई करूंगा। 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 एंड 256। 256 वाला बिट 1 है तो 189 तो नहीं है। अब हम चेक करते हैं कि हमारा 365 है या नहीं। एक सेकंड दो मेरे को। 256 प्लस 64 प्लस 32, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जहां जहां पे 1 है उसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूँ। जैसे 64 वाला 1 था, 32 वाला 1 था, 256 वाला 1 था, तीनों नंबर ऐड होंगे। सिमिलरली 8, 4 एंड 1 वाला है, 8 वाला, 4 वाला और 1 वाला 1 है, ठीक है। तो 8, 4, 12, 1, 13, तो मैं 13 सीधा लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो अगर मैं इसको सम करूंगा, 6, 4, 10 एंड 5 इज 15, 6, 6, 12, 12, 4, 16, 365 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। तो मतलब हमने इसको सॉल्व करना है तो एक चीज का ध्यान रखना है, मैं बार बार इसको डेसिमल नंबर सिस्टम से कंबाइन करके बता रहा हूँ। लेट्स से आई एम राइटिंग 65, ठीक है, डेसिमल में, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता था 6 into 10 प्लस 5 into 1, या फिर मैं 10 to the power 0 और 10 to the power 1 लिख सकता हूँ। एंड दिस विल बी इक्वल टू 60 प्लस 5 इक्वल टू 65, है ना। तो मतलब यही वाला कंसेप्ट अब मैं बाइनरी में लगा रहा हूँ। मैंने वहां पे नंबर, अब मैं खुद ही भूल गया क्या लिखा था। इट वाज समथिंग लाइक दिस 1011, अगेन शायद 1011 था, या 1011011101 then 01। 101 एंड में ए, यस सर। ओके 1101 था सर शायद, क्योंकि 1
8421 था ना? हाँ जी। वो 10111101 था। अच्छा, और बड़ा नंबर था। आई हाँ थॉट 8 डिजिट का था। चलो ठीक है, 1011 यही था। नहीं सर, लास्ट पे एक सर, 1 की जगह बीच में आएगा 1, 0 के हाँ, पहले। हाँ जी। यस ओके, सर। ठीक है यस। ठीक है। तो मैं ये कह रहा था दैट इफ माय नंबर इज लेट्स से 75, तो मैं उसको 7 इंटू 10⁻1 प्लस 5 इंटू 10⁻0 कर सकता हूँ। सिमिलरली अब यहाँ पे ये मैंने कैसे किया? ये किया क्योंकि इनके वेट्स थे 10⁻0 और 10⁻1, तो मैंने उसको वेट्स के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, वंस प्लेस और टेंस प्लेस को, और उसको आंसर दे दिया। सिमिलरली अब यहाँ पे जो मेरे वेट्स हैं वो हैं 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2। उसको सिंप्लीफाई करके मैंने लिख लिया था 1 2 4 8 16 32 64 128 एंड 256। अब 256 वाला इसके साथ मैच हो गया, 0 वाला 128 के साथ मैच हो गया, 1 वाला 64, 1 वाला अगेन 32, 0 एंड 16, 1 एंड 8, 1 एंड 4, 0 एंड 2, 1 एंड 1। तो जहां जहां पे 1 था वो वाले सारे नंबर हमने ऐड किए थे, 256, 64, 32, 8 4 1, ये आया था हमारा 365। तो मतलब अगर हम वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट द आंसर इन डेसिमल फॉर्म। तो यहाँ पे इफ माय नंबर वाज this was base 2, I can convert this into decimal number system by multiplying it by weights। समझ में आ गया ये लेफ्ट हैंड साइड वाला केस? कोई Yes, sir. और डाउट है तो बता दो, इसमें अभी तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हर्षिल, यू आर आस्किंग दिस थिंग दैट कि ये आया कैसे? आपको समझ में आ नहीं गया ये सर, हुआ हो क्या गया है? सर, अब हो गया, हो गया। Okay, okay, good, good, good. Okay, so now I will be focusing on the right hand side। अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड डिस्कस किया था, अब हम ये वाला पॉइंट के बाद इधर का हिस्सा डिस्कस करते हैं फटाफट से। बहुत आसान है। अब जैसे यहाँ पे जो मेरे वेट्स थे वो थे 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3। अब इधर का आपको याद रखना पड़ेगा, इट स्टार्ट्स विद 2⁻−1, 2⁻−2, 2⁻−3, 2⁻4। ठीक है, ये ऐसे करके चलता रहेगा। इट कैन गो अप टू 2⁻n, जितना भी आगे डिजिट होगा, n में भी 10 और 20, तो वो उतना ही 1 इंटू 2⁻−n हो जाएगा। तो इन दिस केस इवन आई नो, बहुत आसान है ये चीज। 2⁻−1 का मतलब है 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5। 2⁻−2 का मतलब है 1/4 विच इज इक्वल टू 0.25। 2⁻−3 का मतलब है 1/8 विच इज इक्वल टू 0.125। अब ये चीज आपको याद तो नहीं करनी, बट थोड़ा बहुत अगर याद रह जाए या आप कैलकुलेट कर लो माइंड में फटाफट तो हेल्पफुल होगा। एंड सिमिलरली 2⁻−4 इज 1/16 इक्वल टू 0.0625। ये चीज आपको यहाँ स्लाइड में भी लिखी हुई दिख रही है। ठीक है, जो उसके वेट्स हैं वो लिख दिए, बस कुछ नहीं करना, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है सबको, और इन सबको ऐड कर देना आपस में। तो 1 इंटू 0.5 इज माई 0.5, 0 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 0.125 इज 125, ऐसे वाला, 1 इंटू 0.0625 इज 0.0625। सो दिस इज द राइट हैंड साइड यहाँ से। ठीक है, ये राइट हैंड साइड आ गया। 8401 इज द लेफ्ट हैंड साइड। आप इन सबको ऐड करोगे, द फाइनल आंसर इज कमिंग आउट टू बी 13.6825। तो 13.6825 जैसे यहाँ पे लिखा है ब्रैकेट में बेस 10, अगर आप ऐसे लिख दोगे तो भी चलेगा। इसमें कोई डाउट तो नहीं है इस स्लाइड में? अब ये सारा सॉल्व हो जाएगा। यस सर। ओके, शुड आई मूव अहेड? यस सर। इसमें किसी को कोई भी डाउट है थोड़ा सा भी अभी पूछ सकते हो, अदरवाइज आई विल मूव अहेड। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर ये 13.6825 के ब्रैकेट में नीचे बेस में 10 क्यों लिखा है? ये तो 2 का बेस था ना। जब हमने उसको वेट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया ना, तब वो बेस 10 हो गया। ओके। जब हम उसको सॉल्व कर देंगे ना, अब वेट्स का हाँ। मतलब है कि हम उसको अपनी भाषा में एक मैथमेटिकल टर्म में आंसर लेके आ रहे हैं। तो जब हमने ये सभी कर दिया, जब और इसको वेरीफाई करने का ना एक और शॉर्टकट बताता हूँ। अगर कभी कंफ्यूजन हो जाए, हो सकती है किसी को भी, अगर कंफ्यूजन हो जाए कि ये मेरा बेस 2 है या बेस 10 है, अगर सिर्फ इन दोनों में कंफ्यूजन है, उसको सॉल्व करने का बहुत सिंपल तरीका है। बेस 2 में मेरे पास सिर्फ 0 और 1 होता है, बेस 10 में
मेरे पास 0 से लेके 9 तक की काउंटिंग होती है। मतलब क्या, अगर बेस 10 है तो उसमें 10 डिजिट्स का ऑप्शन है, बेस 2 है तो उसके पास सिर्फ 2 डिजिट की ऑप्शन है। अब इसमें तो मेरा 6 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, तो ये तो 0 1 तो नहीं है भाई, ये तो बेस 10 ही होगा, अगर सिर्फ 2 और 10 में कंफ्यूजन है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। सर ऐसे मतलब हर नंबर का पेयर होता है कि 2 का 10 ही बनेगा? 2 का 10 बनेगा, ये तो मैंने नहीं बोला यार। देखो, कुछ सुनो सुनो सुनो, अब इसमें ना एक नंबर सिस्टम में बड़ी सही चीज है, एक छोटा सा कंसेप्ट अभी मैंने बताने की कोशिश करी थी पर थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ। अगर मेरा बेस 2 है, बेस 2 की काउंटिंग में सिर्फ 0 और 1 होता है, यस और नो? ये तो हम कह ही रहे हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 0 1 होता है। बेस 10 इज माय डेसिमल नंबर सिस्टम, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 0 1 2 3 4 अप टू 9। ठीक है जी, यही होता है बेस 10। यस सर। ऐसे ही देयर इज वन मोर बेस, कई होते हैं, बेस 8 भी होता है, बड़ा फेमस है। इसको कहते हैं हम ऑक्टल नंबर सिस्टम। जैसे ये मेरा बाइनरी नंबर सिस्टम था, 2 वाला बाइनरी नंबर सिस्टम, 10 वाला डेसिमल नंबर सिस्टम, बेस 8 वाला इज कॉल्ड ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना होता है, 4 5 6 7, 8 9 नहीं होता है इसमें, 8 होते हैं, 0 से लेके 7 तक होते हैं। ठीक है जी, कोई डाउट इसमें? नो सर। सिमिलरली अगर मैं बोलूं बेस 3, वैसे तो ये आपको नहीं है सिलेबस में, पर आपको पता होना चाहिए, कल को कोई और सब्जेक्ट में यूज हो जाए। ठीक है, बेस 3 या बेस 5, अगर किसी ने आपको ये वाला आपकी फिरकी लेने के लिए आपको ये क्वेश्चन डाल दिया, तो बेस 3 का रूल है कि जी इसमें सिर्फ 0 1 और 2 ही होगा, इसके अलावा कोई और डिजिट नहीं आएगा। सिमिलरली बेस 5 में आपको सिर्फ 0 1 2 3 4 यही 5 आएंगे और 6वां नंबर नहीं आएगा। ठीक है, समझ आया? यस सर। ओके, ये एक बेसिक सा कंसेप्ट है, जितना बेस है 0 से शुरू हो जाओ, उससे बेस -1 तक जाओ। जैसे 2 के केस में हम 1 तक गए, 10 के केस में हम 9 तक गए, 8 के केस में 7 तक गए। तो मतलब ये एक बहुत सिंपल वे है याद रखने का कि मेरा नंबर सिस्टम में कितने पॉसिबल डिजिट्स हैं। ठीक है, तो सर ये आंसर में बेस 9 क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज आई नो कि जब भी मैं ये वाली चीज करूंगा, जब भी मैं ये रूल है कि जब भी मैं वेट्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ नंबर को, वो डेसिमल नंबर ही देगा मेरे को। अच्छा मतलब ओके सर। हाँ ठीक है ना, समझ आया? क्योंकि क्या कर रहे हैं हम, जैसे हमने वो 95 को अगर मल्टीप्लाई किया था 5 इंटू 10⁻�0, तो मतलब जो हमारा फाइनल आंसर आया था ना इस केस में, वो एक आफ्टर सॉल्विंग 95 अगर आ भी जाएगा तो दिस इज ए डेसिमल नंबर सिस्टम। तो ऐसे ही अगर मैं 1101 को सॉल्व करूंगा बेस 2 को बेस 10 में, या उसके मल्टीप्लाई करके ऐसे 8 + 4 + ऐसे करूंगा तो 13 आएगा। जो भी मेरा नंबर आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट विद द वेट्स आएगा तो वो हमेशा बेस 10 में ही आएगा, ये रूल है। समझ आ गया जी? चलें आगे। यस। ओके, सो दिस इज माय बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू माय बाइनरी नंबर सिस्टम, अगर मुझे 0 से लेके 15 तक की काउंटिंग लिखनी है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इसको समझने का सबसे आसान तरीका वही है, बार बार मैं वही बोलूंगा, वेट्स पे आ जाओ, 1 2 4 8। अब वेरीफाई करो कि क्या मेरा 11 ठीक है, 1 0 1 1, इसको वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 8 प्लस 0 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, इसको ऐड करोगे 11 ही आएगा। आसान है। ये वाला 1, ये वाला 0, ये वाला 1 और ये वाला 1 यहां से उठाया गया है। कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। सिमिलरली 7 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 1 1 वाई 0 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। तो 0 1 1 जो मेरा था उसको वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा 7 ही आएगा। कर सकते हो वेरीफाई ऐसे हर नंबर को, आसान है। सर हम बाइनरी से हमेशा डेसिमल में जा पाएंगे? कांट वी गो फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी? मतलब इज देयर We एनी मेथड? Yes, there is a method to convert decimal number into binary. We will come to that. But right now, because I am dealing with multiplication of weights, तो जब भी हम multiplication of weights को लेके आएंगे हमेशा we are converting binary to decimal. ओके ठीक सर। है, so just to clarify,
I am right now working on this thing. When I am multiplying my number of binary with its weights, जब भी मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसके weights के साथ, मुझे हर बार डेसिमल नंबर ही मिलेगा. नाउ बिकॉज यू आस्क्ड कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन भी सिखा दो, बहुत सिंपल है जी. हम 9 के ऊपर काम करते हैं. सपोज 9 मेरे पास गिवन है एंड आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम. वी हैव ओनली 2-3 minutes left. I will try to wrap it up quickly. So बहुत सिंपल है, बचपन में सीखा था. डिवाइड बाय 2 करना शुरू कर दो. डिवाइड बाय 2 करेंगे फर्स्ट टाइम, इट विल बी 2 into 4, रिमाइंडर विल बी 1. अगेन 2 into 2, रिमाइंडर विल बी 0. ठीक है. अब बिकॉज मैं अब अगर चलो दोबारा कर लेते हैं, 2 into 1 is 2, रिमाइंडर इज अगेन 0. तो हमारा जो 9 है वो कैसे आएगा? 9 विल कम जब मैं यहाँ पे 1 पे आ गया, या तो मैं यहाँ पे रुक जाऊं, या फिर एक और स्टेप अगर जाना चाहूँ तो शौक से जाऊं. 2 into 0 is 0 बट रिमाइंडर विल बी 1. तो जब मेरा, या तो यहाँ पे रुक जाओ कि मेरा आंसर यहाँ पे 0 आ रहा है, या फिर आप रुक जाओ यहाँ पे जब 1 आ रहा है. तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू टेक द डिसीजन. अगर आप 1 पे रुक रहे हो तो आपको कुछ ऐसे करके ऊपर जाना पड़ेगा. अगर आप चलो मैं पहले 1 वाला केस डिस्कस कर लेता हूँ. इफ आई एम वर्किंग विद दिस थिंग कि मैंने 2 into 4 रिमाइंडर 1, 2 into 2 रिमाइंडर 0, 2 into 1 रिमाइंडर 0. अगर मैं यहाँ पे 1 पे रुक गया तो मुझे ऐसे करके ऊपर जाना पड़ेगा एज द आउटपुट बॉटम टू टॉप. 1 0 0 1 विल बी द आउटपुट इन बेस 2 फॉर द बेस 10. ठीक है. अगर मैं इसको एक स्टेप आगे तक लेके जाता, 2 into 4 is 8, 1 रिमाइंडर, 2 into 2 0 रिमाइंडर, 2 into 1 0 रिमाइंडर. ठीक है जी. 2 1 जा 2, 0 रिमाइंडर आ गया था. नाउ 2 into 0 is 0, रिमाइंडर 1. अगर मैं यहाँ पे 0 तक आ गया, स्टिल आई कैन गो लाइक दिस, बट देन इस 0 का कोई मतलब तो है नहीं, तो इसको नहीं भी लिखोगे तो भी आपका 1 0 0 1 ही आएगा. एम आई क्लियर? Yes, sir. इसमें कोई डाउट है इस प्रोसेस में तो अभी पूछ लो, बहुत आसान था. No, sir. ओके, सो लेट्स वेरीफाई फॉर 13 ऑल्सो. 13 को हम करते हैं डिवाइड बाय 2. क्वोशंट एंड रिमाइंडर लिख लेते हैं यहाँ पे. 13 by 2 क्या आया? क्वोशंट क्या आएगा? 6, रिमाइंडर 1. नाउ 6 by 2, क्वोशंट 3, रिमाइंडर 0. 3 by 2, क्वोशंट 1, रिमाइंडर 1. 1 divided by 2, क्वोशंट 0, रिमाइंडर 1. Bottom to top, answer is 1101. You can verify it is same as 1101. Any doubt? No, sir. Okay, good. So what if we want to take with 16, 17 greater than 15? वेरी गुड क्वेश्चन. उसके लिए सिर्फ एक सिंपल सा काम करना है कि एक बिट और ऐड कर दो, क्योंकि हमें पता है जो हमारे वेट्स हैं वो 1 2 4 8 16 है. अगला नंबर 16 ही था. तो अगर मैं लिखूंगा बाइनरी में 1 0 0 0 0 ऐसे करके 4 बार लिख दिया इन बेस 2, दिस इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू 16 इन डेसिमल. समझ आया जी क्या हो रहा है? Yes, sir. Yes. 17 करना है तो बहुत सिंपल है, फिर से 1 की जगह पे कर दो, इट विल बी 17 बेस 10. क्लियर है? Yes, sir. सर हम 10 इसलिए लिख रहे हैं ना टू स्पेसिफाई दैट दिस इज डेसिमल नंबर सिस्टम. yes, because it is decimal number system और इसका base 10 है. yes. Okay, so time is up. It's 11:21 now. Yeah, time is up. Okay, so let's meet in next lecture. Till then, revise these things. Thank you. Thank you, sir. Sir. Okay. Thank you, sir. Yes, sir.